Am I visible, ma'am? Good evening, everybody. I'm Sayukta from Bladder Wellness Team. I'm sure all of you must be keeping good health. Please vaccinate yourself and do wear mask when in public places. OAB or overactive bladder is a frequent and sudden urge to urinate that may be difficult to control. The condition is common and distressing and may have a large impact on the quality of life. In this month of World Continence Week, let's unite to raise awareness about incontinence related issues and its impact in the life of people living with it. To throw more light on the subject and guide us on what's right for the diagnosis and treatment of an overactive bladder, today we have with us renowned Dr. Ayush Khetarpal. Dr. Ayush Khetarpal, Senior Consultant Urologist at Dr. Ayush Khetarpal Urology Clinic, New Delhi. Dr. Ayush has rich experience in the field of urology and carries out the treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. A very warm welcome to you, Dr. Ayush. Thank you so much, ma'am. Dr. Ayush, normally in June we do celebrate World Continence Week. Now, before we start and talk about OAB or an overactive bladder, I would like you to throw some light on incontinence related issues. Incontinence क्या है? ऐसे related issues क्या हो सकते हैं? Ma'am, the term overactive bladder, when we say that is basically urgency, frequency, and nocturia. इसमें जैसे हम बोलते हैं incontinence is basically just spontaneous leakage of urine whether it may be जिसको हम normally बोलते हैं कपड़े गीले हो जाना, जैसे कोई अगर खांसता है, कोई अगर छींकता है या बहुत जोर से अगर हंसता है या अगर जंप करता है, कूदता है, तो उसमें भी कईयों के कपड़े थोड़े से गीले हो जाते हैं. That is basically because of the slight leakage of urine in his clothes. That is or we can call it as a soiling of clothes. This is what we call with urine. So incontinence is something. Right. Team, hi. Ma'am, are you visible? Yes. Yes. So, doctor, we spoke about incontinence. What is incontinence? Now, as today we are going to talk about OAB and overactive bladder, how do we understand कि OAB क्या होता है? OAB, जैसे मैंने बताया, it is basically urgency, frequency, and nocturia. Urgency can be with or without incontinence. With incontinence, it means that the patient may have slight leakage of urine, and without incontinence means there is no leakage of urine. This is how we call OAB. And OAB, yeah. तो ये जो आपने symptoms बताए हैं, यही associated है OAB से या कोई और भी symptoms होते हैं? Normally, same वही जैसे मैंने आपको बताया, urgency, frequency, nocturia, and urinary incontinence is another symptom that is there. That is when we call it as an urge urinary incontinence. The patient may have an involuntary leakage accompanied by or immediately preceded by urgency. And this OAB, it can be dry or a wet OAB. That means that the patient may have a urge urinary incontinence, and sometimes they may not have any urinary incontinence in the OAB. Okay. Yeah. And doctor, what causes OAB? Overactive bladder होता कैसे है? Overactive bladder में basically जैसे किसी को कोई अगर bladder inflammation हो, chronic bladder obstruction हो, या maybe some kind of a CNS disorder, maybe in case of pregnancy, post-vaginal delivery, post-menopausal status हो किसी का हो, old age में हो, maybe BPH, especially male patients, stricture urethra, or I would say कई बारी मैम, and in many of the cases sometimes the causes are idiopathic, means they are unknown, maybe neurological cause. So normally कैसे भी होता है. Okay. आपने जो सिम्टम्स बताए हैं, कई बार ये सिम्टम्स एजिंग के साथ भी दिखते हैं कि बार-बार उठ रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, या फिर कई बार ये होता है कि मार्केट जाने से बचते हैं, सोशल प्लेसेस पे जाने से, पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचते हैं कि वहां पे वॉशरूम मिलेगा कि नहीं. that thought is continuously coming to your mind. और डायबिटिक पेशेंट्स या दूसरे तरह के तमाम लोग होते हैं जिनके साथ ये सिम्टम्स होते हैं, तो कई बार they have started living with those symptoms. मतलब
आप किसी से पूछेंगे अरे आपको ये इशू है, आप क्यों नहीं डॉक्टर को दिखाते, तो वो कहते हैं अब तो मेरी एज हो गई है, ये तो होगा ही, आई एम बाउंड टू हैव दिस। एग्जैक्टली तो ऐसे जो एग्जैक्टली लोग हैं और हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने भी इस तरह के लोग जितने भी होते हैं, आई मीन दे थिंक दैट इट इज द लाइफस्टाइल व्हिच हैज, मतलब ये अपने एक अपनी लाइफस्टाइल किस तरह से बना लेते हैं। हम सबको वही बता रहे कि जो आप पहले थे अब आप वो नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले जैसा नहीं बन सकते। हमेशा हम लोग इसी थॉट में जी लेते कि अब तो मेरी एज हो गई, अब तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी उतने ही यंग है, उतने ही जवान है। मैं ये बोलूंगा कि आप अपने आप उसी तरीके से आप अपने आप अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से आप जी सकते हैं। इट इज अ सिंपल, वेरी फ्यू सिंपल स्टेप्स विच यू नीड टू फॉलो। जैसे जब इस तरह से कभी होता है तो आप अपना एक जैसे डबल वर्डिंग करते हैं, डबल वर्डिंग, टाइम वर्डिंग जिसको हम कहते हैं कि अब जैसे अगर आपने मार्केट जाना है तो मार्केट जाने से जस्ट पहले आप अपना वहाँ पे यूरिन, आप घर से आप यूरिन पास करके जाइए। in case you need to go in case you need to you have an urge during the market stay, तो आप अपनी मार्केट में अगर कोई अगर पब्लिक टॉयलेट अगर आप ढूंढ भी लेते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट इट इज क्लीन एंड यू कैरी मे बी सैनिटाइजर समथिंग, ताकि आप उस एरिया को आप क्लीन करके आप उसको यूज कर सकें। इफ नॉट, अगर नहीं हो पा रहा है तो यू कैन जस्ट आई मीन इफ यू शुड ट्राई टू होल्ड योर यूरिन एज मच एज पॉसिबल एंड I mean, with simple exercises, simple medicines that can be easily be controlled, and this is very much possible. जो basic cause है आप उसको बस आपको roll out करके और आपको आराम से इसको treat करना है। तो it is nothing as such कि this is not treatable. This is very much treatable. ओह दैट्स अ गुड न्यूज़ आई थिंक, क्योंकि बहुत से लोग ओएबी से सफर करते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं होता है कि ये ओएबी है। उनको लगता है इट्स जस्ट अ साइन ऑफ मे बी एजिंग और अदर इलनेसेस। तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि सबसे पहले अगर आपको ये सिम्टम्स है, प्लीज गो एंड मीट योर यूरोलॉजिस्ट एंड सीक एडवाइस, क्योंकि ये कंप्लीटली क्योरेबल है, ट्रीटेबल है। तो प्लीज आप don't suffer in silence is what we would like to say. Doctor, one more thing. We always say that prevention is better than cure. Is there anything we can do when we don't have OAB to prevent OAB? Basic thing I would say, you have to go for a behavioral therapy. आप अपना थोड़ा सा अपना जो normal basic lifestyle है आप उसको आपको change करना है। I mean, in the morning you can have as much as what as you wish, and you should avoid caffeine in any form, like maybe tea, coffee, colas. These are the basic steps. And then I would say again, double wording and timed wording. Double wording means अगर आप एक बार यूरिन पास, जैसे नॉर्मली आप इंसान जब यूरिन पास करने जाता है, अब यूरिन पास करिए, यूरिन पास करने के बाद एवरी वन ऑफ अस, आई मीन मे बी लेट इट बी यू, लेट इट बी मी, वी हैव अ लिटिल सेंसेशन दैट थोड़ा सा हमें और कुछ करना था तो हम थोड़ा सा भी कर पाते। तो थोड़ा सा हमें एक यूरिन जो थोड़ा सा हमारे रह जाता है, हमारे एवरी वन ऑफ अस हैज दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि अपना थोड़ा सा जो करके आता तो हमें वो बार बार उसमें यूरिन नहीं आता, तो वो आपको यूरिन निकाल के आना है। यू स्टे इन योर टॉयलेट फॉर मे बी लाइक a few seconds of, I would say at least a minute, वो आप निकाल के आइए। That is double wording. Time wording again, that every 2 to 3 hours or 4 hours maybe you just, I mean, you set yourself as a you give yourself a target कि हर 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में मुझे अपना एक बारी मुझे यूरिन पास करना ही करना है। हम जैसे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, नॉर्मल हम जैसे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं बच्चे को कि बेटा तुम्हें हमेशा हर 2 घंटे में 3 घंटे में यूरिन पास करना है, इसी तरह से हमें अपने आप को हमें इस चीज को दोबारा से सिखाना है। जो हम अपने आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में, बिजी स्केड्यूल में हम ये सब चीजें भूल जाते हैं कि हमें ये भी हमारी जिंदगी थी जो जिसमें हमें जिस तरह से प्रॉपर हमारे जो ब्लैडर की जो वेलनेस है उसको हमें ढंग से करना है, जो हम हमेशा जो चीज भूल जाते हैं। दीज आर द वेरी फ्यू बेसिक थिंग्स। अगर हम इन्हीं सब चीजों को फॉलो करें तो आपको मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनकेस अगर आपको ऐसे कुछ पड़ती भी तो ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मेडिसिन व्हिच कैन हेल्प यू विद द सेम थिंग। बिल्कुल, तो आपने जो बताया उससे we can make out that a little bit of lifestyle modification maybe can actually reduce the symptoms of an overactive bladder. डॉक्टर, पानी को लेकर या fluid intake को लेकर भी हम आपसे थोड़ी clarity चाहेंगे, because the old traditional thought that we all have, especially in India, is that we should drink hell lot of water, a lot of water. So what's the एग्जैक्टली। reality? कई लोग आज की डेट में, जैसे आई वुड से इन द मंथ ऑफ मई एंड जून और मे बी इवन अप टू जुलाई, देयर इज अ लॉट ऑफ हीट। आई मीन बिकॉज ड्यूरिंग द समर आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर आप देखें ऑल ओवर इंडिया इट्स टू हॉट। सो आई ऑलवेज से कि पानी आप खूब पिए, जिसको पानी पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस अपना जो इनटेक है, इट शुड नॉट बी, आई वुड से मोर देन, आई वुड से 500 ml
maximum, I would say maximum to a liter, maximum I'm saying 2 लीटर इन वन गो. कई बार लोग क्या होते हैं कि कई बस बस फटाफट पानी पीना तो इकट्ठे पी ले. अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगे तो मे बी ही कैन टेक अबाउट मे बी लाइक 500 ml और मे बी around 700 ml of liquids in one go. That's fine. But unnecessary बहुत ज्यादा fluid intake, that is also wrong. You can take it. I mean थोड़ी थोड़ी देर में about half an hour, 45 minutes, 1 hour में अपना आराम से अपना keep yourself hydrated, but not too much of water. In the whole day you can take about like maybe 4 liters or maybe 4.5 liters. That too it's more than enough. That, I mean, to keep you hydrated, that water is more than enough for you. And of course, especially in case of people who are having overactive bladder, I always ask them, you should decrease your fluid intake 2 hours prior to your sleep. You अगर आप रात के, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप रात को 10 बजे से अगर आप सोते हैं तो 8 बजे से अपना पानी पीना बिल्कुल थोड़ा सा कम कर दीजिए. मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं पीना है, जितना आप कम कर सकते हैं नॉर्मली अपना. अगर आप जैसे कोई अगर दवा खाते हैं या अगर आप खाना खाने के बाद कुछ भी है, तो जस्ट इतना ही पानी पीजिए जितना आपको सिर्फ जरूरत है. सिर्फ जिसको कहते हैं मुंह मुंह अगर गीला करने के लिए, गला हल्का से गीला करने के लिए, जस्ट हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर. आई थिंक दैट शुड बी इनफ. अननेसेसरी फ्लूइड इंटेक भी कई लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो उस चक्कर में भी कई लोग को overactive bladder भी होता है. तो these things can be avoided. Okay. Doctor, as when we were talking about the causes responsible for an overactive bladder, you also mentioned that, in women due to hormonal reasons, after menopause or after giving child to a baby, there may be chances कि उनको overactive bladder या incontinence का issue हो specifically. तो ऐसे में क्या Kegel exercises या pelvic floor strong करने के जो exercises आते हैं, वो भी कारगर हो सकते हैं? Exactly. Pelvic floor exercises, or I would say the Kegel exercises, they're very beneficial. हमारी pelvic muscles को strong करने के लिए अगर जब हम करते हैं तो it gives a very good muscle contraction. और इस तरह से हमारे जो कई बार जैसे कई पेशेंट होते हैं जिनकी जो ब्लैडर कैपेसिटी है that becomes quite small. So वो भी हेल्प करती है उनकी ब्लैडर कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए. पेशेंट्स को यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें काफी हेल्प करती है. कीगल एक्सरसाइज इज वेरी बेनिफिशियल. यू शुड मतलब दिन में कम से कम अगर पॉसिबल है, इट डजंट रिक्वायर कि आपको हमेशा बैठ के ही करनी है या लेट के करनी है. आप किसी भी समय, इवन आप खड़े खड़े भी कई बार आप कई पोजीशन में आप कर भी सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि इवन व्हाइल यू आर इन योर ऑफिस, मे बी एट योर होम, maybe in the car, you can always do that. So Kegel exercise, कुछ basic, उसके जो basic steps आप कर सकते हैं. बाकी of course the best way is of course to go to a physiotherapist and he will teach you the very many basic things जो आपको Kegel exercise में जरूरत पड़ती है. In the lying down position, of course, it's the best. But जो लोग कई बार नहीं कर पाते या maybe they're in a hurry, they can always do even in the sitting in the lying down position. That's very easy. Right. Doctor, now though we have talked about the treatment options and bits and pieces, लेकिन फिर भी आपने बताया कि lifestyle modification होना करना पड़ता है. इसके अलावा medicines available है और क्या कुछ available है? क्या surgery भी होती है इस केस में? थोड़ा treatment options के बारे में बताइए. मैम सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मैम सबसे पहले स्पेशली फीमेल्स में जैसे हम देखेंगे आज की मतलब जैसे ओबेसिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स. ओबेसिटी आजकल काफी ज्यादा. तो सबसे पहले तो मैम बिफोर फॉलोइंग एनी ट्रीटमेंट वी शुड see we should observe the patient whether the patient is a diabetic or overweight or having morbid obesity. तो सबसे पहले तो उनका हमें ओबेसिटी को हमें ट्रीट करना है. अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को हमें देखना है कि डायबिटीज उनकी ठीक हो जाए. और इसके तरह के जितने भी उसके कोई अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस को भी हमें उस तरह से हमें देखना पड़ता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसका वो पेशेंट उसका ट्रीटमेंट ले रहा हो. along with that treatment, जैसे मैंने बताया, treatment can be of 3 types. I mean like a non-invasive treatment or minimal invasive and a highly invasive treatment. Non-invasive में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने behavioral therapy या lifestyle modification, बेसिक कुछ एंटी मस्कुलिनिक्स, एंटीकोलिनर्जिक हम मेडिसिन हम देते हैं. एस्ट्रोजन देते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में, या मेल्स में हम कई बार अल्फा ब्लॉकर्स भी देते हैं. इन मिनिमल इन्वेसिव वी समटाइम्स वी गिव बोtulinum टॉक्सिन दे देते हैं कई पेशेंट्स में. कई बार में न्यूरो मॉड्यूलेशन भी करते हैं, लाइक पोस्ट टिबियल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं. या फिर कभी कभार सब एरेक्नॉइड ब्लॉक भी दे सकते हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा अगर इंटरप्शन ऑफ इंटरवल होता है तो उसमें भी दिक्कत सकते हैं. और इन केस आई मीन इन वेरी हाई अगर किसी को बहुत ज्यादा कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर अ सिस्टोप्लास्टी. आई मीन ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी मींस अपना उसमें उसको बढ़ाने के लिए, ब्लैडर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी हम करते हैं. या फिर
यूरिनरी डाइवर्जन्स भी हम कर सकते हैं. These are other options which are available. ओके, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है. सिर्फ जरूरत है कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो प्लीज गो एंड मीट योर यूरोलॉजिस्ट बिफोर इट गोज टू लेट. डॉक्टर, नाउ पेशेंट्स और जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो सेशन को सुन रहे हैं, अगर उनको ये सिम्टम्स है तो उन्हें क्या करना चाहिए? Ma'am, the same thing. They should always come to the nearest urologist and they should consult them. And basic जो चीजें मैंने आपको बताई हैं अपने टॉक में, कि जो बेसिक चीजें अगर वो फॉलो कर सकते हैं घर पे, टू एजुकेट देम, बेसिक चीजें करेंगे अगर, उससे अगर उनका काम अगर हो जाता है, उससे उनके सिम्टम्स अगर रिलीव हो जाते हैं, नथिंग लाइक इट. अगर उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो दे कैन ऑलवेज come down to me or any their nearby urologist and get things sorted out. We can always easily explain them and get the work done. Right. And doctor, if a patient has already suffered a lot, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क नहीं किया, किसी डॉक्टर को नहीं बताया, तो ऐसे अगर समय बीत जाने के बाद किसी डॉक्टर से हम संपर्क करते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट का टाइम जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है? इसलिए जरूरी है कि जैसे ही सिम्टम्स दिखे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. मैम, इट ऑल डिपेंड्स. पेशेंट ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट तो कई सालों से जिनको फर्क नहीं आता है, वो कई सालों से, मतलब अराउंड 10-12 years 15 years से वो इस चीज को छुपा के बैठे होते हैं. लाइक व्हाट आई सेड अर्लियर, इट इज अ सोशल स्टिग्मा. सम लोग, सम फीमेल स्पेशली, at young age they feel very shy to come to a urologist, maybe, and they especially go to ये एक urological symptom है, और ये कई बारी वो गायनेकोलॉजिस्ट पे जाके हमेशा बस अपनी वही सिम्टम्स बताते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं. तो गायनेकोलॉजिस्ट भी उनको मे बी अलग अलग तरह के कीगल्स एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स दे डू गिव दैट, बट कीगल्स एक्सरसाइज देते हुए या कुछ और चीज देते हुए दे डू ट्रीट देम. बट जब तक वो अति नहीं हो जाती तब तक वो कई बार भेजते नहीं है. तो ये चीज भी एक ऐसी चीज होती है. तो वी शुड ऑलवेज कंसल्ट द यूरोलॉजिस्ट, कंसल्ट द प्रॉपर डॉक्टर, कि इस चीज में हम देखें और सब कुछ करें. और आई हैव सीन पेशेंट्स who have had symptoms for almost 10 to 15 years. उनको आप कुछ बेसिक थेरेपीज, कुछ बेसिक, उनको आप बेसिक एजुकेशन देंगे, कुछ बेसिक मेडिकेशन देंगे, and they are very happy with the medication and they are easily cured. That's not this can be easily controlled. That won't be an issue. Yes. And doctor, how life threatening, मतलब क्या ये life threatening है, या how bad can a neglected overactive bladder become? Neglected overactive bladder, especially I would say in case of some neurological symptoms or maybe some neurological conditions, like I would say just like SLE में रहता है, मतलब अलग there are many neurological diseases जिनमें भी कई बार पेशेंट्स को overactive bladder होते हैं because of the small bladder capacity or something or the other. उसमें the patient has to undergo basic exercises and basic treatments, like जैसे CIC करते हैं, कुछ CIC जिसको हम कहते हैं clean intermittent catheterization, उससे भी आसानी से इस चीज को हम ट्रीट कर सकते हैं. पेशेंट का ब्लैडर हम कंट्रोल कर सकते हैं, of course with basic lifestyle modifications and basic methods जिनको हम कहेंगे, उनसे पेशेंट्स का ये सारे जितनी भी चीजें हैं आराम से कंट्रोल हो सकते हैं. That is not a problem. Okay. And जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उससे सिर्फ ब्लैडर ही नहीं, कुछ और ऑर्गन्स है जो एसोसिएटेड है, लाइक किडनी व्हिच एक्ट्स एज द फिल्टर. मेन की बात करें तो उनमें प्रोस्टेट होता है बिकॉज़ द पार्ट ऑफ द यूरिनेशन गोस थ्रू दैट. तो ऐसे में अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो क्या ये जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है इनको भी कोई खतरा होता है, इनको भी किस तरह से अफेक्ट कर सकता है? That is right. In male patients, just like prostate, जैसा आपने बताया मैम, prostate में ज्यादातर patients जब रहते हैं, अगर जिनको prostatism बढ़ जाता है, they have कई बारी despite passing urine, they have a post-word residual volume which they have. I mean, पेशाब करने के बाद भी उनका थोड़ा सा पेशाब अंदर उनकी पेशाब की थैली में उनका रह जाता है. उस चीज के लिए अगर कभी ज्यादा नहर लग पड़े तो उनकी जो ब्लैडर है, जो उनकी यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ जाती है एंड उसमें उसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा वीकन हो जाती हैं. और अगर बहुत ज्यादा रहना शुरू हो जाए तो फिर ये जो है, इसकी वजह से आपकी जो दोनों किडनीज है, किडनीज पे भी आपका फर्क आना शुरू हो जाता है. किडनीज में एक तरह से हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसको हम कहते हैं, सूजन एक तरह से अपना कई भी आनी शुरू होती है. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन. तो कई बारी ये सब चीजें भी होती हैं. जस्ट इट इज नॉट जस्ट कि हमें कोई एंटीमस्कैनिक या और से देनी पड़ती. कई बारी एल्फा ब्लॉकर्स का भी रोल इस चीज में ऐसे बढ़ जाता है एंड patient may require surgery in these conditions. Accordingly देख के
उनका उनकी सिम्टम्स क्या हैं, कहीं उनको इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, मे बी बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, दीज थिंग्स कैन इजीली बी कंट्रोल्ड, और हो जाता है। Okay, so एंड yes, so it's easily controlled, it's treatable. So please go and seek your doctors, and in this case, a neurologist help advice, and please don't suffer in silence. That's what we are continuously saying. Now, doctor, एक और आम सवाल जो लोगों के मन में उठता है वो ये कि क्या स्मोकिंग से या ड्रिंकिंग अल्कोहल से भी इस प्रॉब्लम को किस तरह से दिक्कत होती है, एग्रीवेट होता है ये? smoking and alcohol, of course, it's not just in bladder, it's everywhere. So smoking and alcohol में हमेशा ही I'm not saying कि आपको smoking से ही मतलब it is all related to all of these symptoms, but yes, smoking is bad in most of the cases. If you are having these kind of symptoms, you have to stop smoking. Smoking is definitely bad. Alcohol intake, some people, some doctors, even they say that yes, a very small portion is good for your health, but I'm not of that thought. मैं सबको यही बोलता हूँ कि जितनी जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज इसको अवॉइड कीजिए, इसको प्लीज बंद कीजिए। अननेसेसरी आपकी नॉट जस्ट योर ब्लैडर, इवन द होल, आई मीन पूरी शरीर पे आपको इसमें आपको आपको इफेक्ट पड़ता है, तो आप यू शुड स्टॉप ऑल दिस। Yes, so smoking and alcohol consumption and anything and everything that irritates your bladder, you need to avoid them. You need to stop them. That's important. And कई बार कहा जाता है कि obesity या weight gain की वजह से भी OAB के cases जो हैं वो बढ़ते हैं, worse होते हैं. इसका क्या reason? Obesity की वजह से there are many other diseases just like diabetes. I told you earlier, some hormonal imbalances and other morbid conditions. Patients become hypertensive. Some they develop some kind of cardiac issues as well because of obesity. And जब उनकी पेशेंट्स की कोई मूवमेंट नहीं होती, दे सिट ऑन द बेड, मतलब वो कहीं हिलते डुलते नहीं है, कुछ नहीं है, एक जगह अगर बैठे रहते हैं कई बार, तो patients they tend to I mean they tend to to get prone to many diseases, unnecessary diseases, which during the process overactive bladder becomes more evident, and patients develop these kind of symptoms. इस तरह से रहता है, और patients मतलब obesity, that is why we always say that overactive bladder is mostly seen in females who are more obese. जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, तो इस तरह से रहता है। तो ओबेसिटी इज ऑफ कोर्स you have to get a control over the obesity part. Okay, and because we are continuously discussing कि women में क्या reasons हो सकते हैं, men में क्या reasons हो सकते हैं, in general सब में क्या reasons हो सकते हैं, causes हो सकते हैं OAB के, क्या percentage vary करता है या men and women are equally prone or at risk for OAB? जैसे ओवरऑल परसेंटेज हमारी जो नॉर्मल रहती है, दैट इज अराउंड 11 to 35% की हमारी ओवरऑल परसेंटेज रहती है। फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा है, फीमेल्स में अराउंड 12 to 40% आता है। मेल्स में अगेन दिस इज अ बिट लेस, आई वुड से बिटवीन 10 to 27% तक इतना रहता है नॉर्मली। दिस इज देयर, इस तरह से। Right. And UTI, urinary tract infection, क्या इसकी वजह से भी an overactive bladder हो सकता है? यस, जब पेशेंट को नॉर्मली पेशेंट्स को यूटीआई जब होता है, in most of the patients they do complain of frequency and urgency. This is the most common symptom, frequency, urgency and nocturia. The patient has a repeated symptom of going to the toilet again and again. सब हम हमेशा एक ही बार बहुत बोलेगी मुझे बार बार यूरिन आ रहा है, because of the inflammation of the bladder wall. पेशेंट को बार बार ऐसा लगता है कि मुझे यूरिन आ रहा है, जबकि ऑलरेडी मुश्किल से 10-15 मिनट 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले यूरिन पास करके आ चुका होता है। एंड अगेन द पेशेंट हैज अ कंडीशन कि नहीं मुझे बार बार यूरिन पास करने जाना ही जाना। सो यू हैव टू ट्रीट द राइट कॉज। इट इज नॉट जस्ट कि हमें हमें मेडिसिन देनी, बट हमें उसका कॉज भी ढूंढना है कि उसको बार बार ये ओवरएक्टिव ब्लैडर या फिर उसको पेशेंट को बार बार उसको यूटीआई क्यों हो रहा है। तो यूटीआई को भी ढूंढना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट जस्ट कि अपना यूटीआई का कॉज जो है उसको जानना जरूरी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे हम ट्रीट करते हैं। जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, या फिर अपना मेडिसिन जो देनी है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। बिल्कुल, तो ये जरूरी है कि सबसे पहले कॉज डायग्नोस हो, और ये ही बेस होता है जिससे आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सके आपके डॉक्टर। तो इसके लिए जरूरी है प्लीज गो एंड विजिट योर यूरोलॉजिस्ट इफ यू हैव एनी दीज सिम्पटम्स। डॉक्टर, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द conclusion part, and
कोई ऐसी बात जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहे, कोई ऐसी जरूरी चीज या जरूरी टेक अवे मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मैं सबको यही हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि पेशेंट्स दे शुड नेवर सिंपली सफर इन योर दे शुड नेवर सफर कि अपनी कोई ऐसी चीज नहीं दैट दे शुड हाइड विद द डॉक्टर, और अपने आप को बिल्कुल शाय फील मत कीजिए एक डॉक्टर के पास आने के लिए अपने सिम्टम्स बताने के लिए, whether you're male or whether you're female, that is very much irrelevant कि अपना आप मेल फीमेल है तो आप, लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए डॉक्टर के पास अपनी परेशानी बताने के लिए। डोंट फील शाय, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी किसी को अगर आपको अपना डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो पा रहा है, या अगर आपको ट्रीटमेंट प्लान अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यू शुड ऑलवेज गेट अ सेकंड ओपिनियन। आई मीन टू कम टू यूरोलॉजिस्ट एंड गेट एन ओपिनियन अबाउट इट। अगर आपको कभी बार बार अगर आप उठ रहे हैं, छींक रहे हैं जैसे, और खांसते हुए कभी अगर आपको अगर आपको यूरिन लीक कर जाता है, तो ऑफ कोर्स दैट इज बेसिकली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अगेन, so you have to come to the urologist to seek medical help. And if you have a persistent जैसे कभी किसी को अपना अगर पेशाब में अगर खून भी कई बार आ रहा होता है, जिसको हम हेमेचूरिया कहते हैं, तो भी कई बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अपना उसको ओवरएक्टिव ब्लैडर की तरह भी कई बार वो ऐसे प्रेजेंट करता है कि अपना थोड़ा सा उसको लीक कर रहा है, तो इस तरह से दिखता है। एंड persistent symptoms अपने अगर आपने देखे, अगर आप symptoms में कोई रिलीफ नहीं आता, of course you should come to the urologist for this. बिल्कुल, तो अगर सिम्टम्स हैं तो प्लीज गो एंड चेक विद योर यूरोलॉजिस्ट। प्लीज डोंट सफर इन साइलेंस। आप ये मत सोचिए कि हो सकता है कि एज के बाद या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के वजह से या मैं फीमेल हूं तो ये सब तो होता ही है। इन सब का इलाज है, ये सबसे बड़ी बात है। तो प्लीज सफर मत कीजिए, जाइए, बात कीजिए, यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर आयुष, एंड वी रियली हैड अ फैंटास्टिक टॉक। आपने हमारे लिए समय निकाला और इतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए आपने दिया। थैंक यू सो वेरी मच। हम रियली Thank ये you so उम्मीद much, ma'am. करते हैं कि आने वाले समय में कुछ और ऐसे सेशंस अलग अलग टॉपिक्स पे हम आपके साथ जरूर करेंगे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. And viewers, thank you for your excellent participation। और ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं ओवरएक्टिव ब्लैडर के बारे में या कैसे इसे ट्रीट किया जाए, इसे डायग्नोज किया जाए, so for more information and updates on the overactive bladder, stay connected on our FB page Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter and Insta.